એક વેપારી કોમ ગણાવીએ છીએ, પણ શું વેપારમાં અભ્યાસની જરૂર નથી હોતી? વેપારમાં જ મહત્તમ અભ્યાસની જરૂર છે. આપણે દુકાને બેઠા હોઈએ અને કંઈક અચાનક બહાર જવાનું થાય તો છોકરો 12મામાં ભણતો હોય, સાયન્સમાં ભણતો હોય, 10માના એસએસસીમાં હોય તો ફોન કરીએ, બેટા આજે મારે બહાર જવાનું છે તો દુકાન આવીને બેઠ, આજનો દિવસ દુકાન સંભાળ. પાછા 15 દિવસ થાય પાછા બોલાવીએ. આવી રીતે વારે વાર બોલાવવાથી છોકરાના મગજના અંદરથી અભ્યાસની મહત્ત્વ ઘટી જાય છે અને બાળક ધંધામાં ધ્યાન આપતો થઈ જાય છે. તો જિમ્મેદાર કોણ? આપણે વાલી જ છીએ. અમે કાચો અભ્યાસ કર્યો તો પૂરું સર્વે નથી આપતો, પરંતુ છેલ્લા 3 વર્ષના અંદર એસએસસી તેમજ હાયર સેકન્ડરીનું તમે સર્વે કરજો તો આપણા છોકરાઓની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. વધવી જોઈએ એની જગ્યાએ ઘટતી જાય છે. અને લેડીઝ બેબીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે. એનું કારણ શું? એક આ મહત્ત્વનો ટોપિક છે. શિક્ષણવિદોએ એ માટે વિચાર કરવો જોઈએ. કારણ ક્યાં સુધી એ આ ખાઈ રહે. પછી આપણે કહીએ છીએ, હું ખુલ્લી વાત કરું છું પ્રમુખના હેસિયતથી, પછી આપણે કહીએ કે ફલાણાની છોકરી કે ફલાણાનો જતી રહી, ત્યારે એની ડિટેલ લઈએ તો કહીએ છીએ કે એના માપના મૂર્તિયા મળતા નથી. આપણી છોકરીઓ 12મા પાસ થઈ, બીએસસી થઈ, ડૉક્ટર થઈ અને ઉચ્ચ વર્ગમાં પહોંચે છે. પણ તેના જિમ્મેદાર આપણે વાલી છે. મારી એક ખાસ નમ્ર ગુજારિશ છે કે પોતાના બાળકો પર પણ ધ્યાન આપે, છોકરાઓ પર પણ ધ્યાન આપે. એના વિશે આપણી મહેમાન કાઉન્સિલે એક પોલિસી બી ઘડી છે. ઇન્શાઅલ્લાહ શિક્ષણ ચેરમેન સમિતિના નદીમભાઈ એ વિશે વિગત આપશે. સાથે સાથે આજના આ પ્રોગ્રામના અંદર જે બાળકોએ મહેનત કરીને આગળ આવ્યા છે એ બધાને મારા તરફથી મુબારકબાદી આપું છું. અને ખાસ તો આવો ભવ્ય પ્રોગ્રામ, જાજરમાન પ્રોગ્રામ, સુંદર પ્રોગ્રામ કરવા બદલ હું પ્રમુખ ઇકબાલભાઈ, તેમની યંગ કમિટી તેમજ તમામ કમ્યુનિટીને હું અભિનંદન પાઠવું છું. અને હું આગ્રહ કરીશ, બીજા જમાતોના પ્રમુખો અહીં બેઠા હશે અને બીજા જમાતના સાથીઓ બેઠા હશે, એમને પણ વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવો જાજરમાન પ્રોગ્રામ કરે. જાજરમાન ના કરીને સાદો પ્રોગ્રામ તો દરેક જમાત કરે. આ માટે જમાત કાઉન્સિલ પણ દરેક જમાતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પોતાના તરફથી જે ઇનામ વિતરણનો પ્રોગ્રામ કરે છે એને 5,000 રૂપિયાનું ઇનામ આપે છે પ્રોત્સાહક તરીકે. અહીં બી અમે આવ્યા છીએ કાઉન્સિલ તરફથી ઇકબાલભાઈને, પ્રમુખને અમે 5,000 રૂપિયાનું ઇનામ ચોક્કસ નકદ આપીશું. અને અત્યારે હું આપી પણ દઉં છું. ઇકબાલભાઈ. પ્રમુખ સાહેબ આ 5,000ની કંઈ કિંમત નથી, પણ 5,000 રૂપિયા એક પ્રોત્સાહક છે અને બધી જમાતો કરે એનાથી બાળકોને ફાયદો થાય એવી અમારી કાઉન્સિલની બહુ ઈચ્છા છે. થેન્ક યુ પ્રમુખ સાહેબ. અમારા પ્રમુખ બહુ ઉતાળ કરતા નહીં, પૈસા લેવા ધીમે ધીમે આવે છે. ભાઈ ધીરજવાળા છે એટલે આગળ વધી રહ્યા છે. હજી આ ધીરજ રાખી ઇન્શાઅલ્લાહ બીજી 2 ટર્મ રહેશે એવી દુઆ કરીએ. ઇન્શાઅલ્લાહ ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી દુઆ કબૂલ થાય એવી અમારી બી દુઆ. મને 3 વર્ષ પૂરા થયા કાઉન્સિલના પ્રમુખ પદે અને ઉપર 1 મહિનો પણ જતો રહ્યો. તમામ જમાતો 26 જમાતોએ જે મને સાથ સહકાર આપ્યો છે એને હું ઋણ ન ભૂલી શકું. પરંતુ ગયા 3 વર્ષમાં અહીં પણ હું પ્રોગ્રામમાં આવ્યો, એમાં કંઈક મારી સતી થઈ હોય તો મેં જેમ વિસનગરમાં કીધું અહીં બી કહું છું તો દિલગીર છું, એ બદલ માફી માગું છું. અને 3 વર્ષ માટે પૂરેપૂરા સહકારની અપેક્ષા રાખું છું. અને કાઉન્સિલનો કોઈ બી માણસ કોઈ પણ કામ માટે કોઈ જરૂરિયાત કામ હોય તો ઇન્શાઅલ્લાહ અમારો સંપર્ક, અમારી કેબિનેટનો સંપર્ક કરી શકે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ અમે દરરોજ કાયમ માટે ઉપલબ્ધ છીએ. હું નહીં તો કેબિનેટના કોઈ સાથી આપણી તકલીફોને નિવારવાની કોશિશ કરશે ઇન્શાઅલ્લાહ. મારાથી કંઈ વધાઈ ગયું તો માફ કરજો. ખુદા હાફિઝ.
ખૂબ શુક્રિયા પ્રમુખ સાહેબ કવર આપવા બદલ. ડ્રોપ આઉટની જે વાત કરી એ બી બહુ સરસ વાત કરી તમે. હવે આપણે ધોરણ 1, 2, 3ના વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર રહેશે ઇનામ માટે. ધોરણ 1, 2, 3ના વિદ્યાર્થીઓ આગળ આવીને તૈયાર રહેશે. એના પહેલાં એક જે નવા મહેમાન આપણે આવ્યા છે અયુબભાઈ ડીસાવાળા સ્ટેજ પર, એમનું બહુમાન કરવાનું છે. તો એના બહુમાન માટે ભાઈ મને ગિફ્ટ આપી દે, એમનું જ હું બહુમાન કરી દઉં, મને બી મોકો મળે બહુમાન કરવાનો. સરફરાજ. આગળના ત્રણ મહેમાનોનું બહુમાન કરવાનું બાકી છે. એક છે ભાઈ અલ્તાફભાઈ પત્રકાર, ડૉક્ટર એસાબેન સાહેબ દ્વારા બહુમાન કરી લઈશું એમનું. અલ્તાફભાઈ પત્રકાર, નિસારભાઈ તલાટી. અલ્તાફભાઈ પત્રકાર, નિસારભાઈ તલાટી આવી જાય. સમીરભાઈ ડીસા, સમીરભાઈ ડીસા હોય તો પણ આવે. જાવેદભાઈ મેડિકલ. અલ્તાફભાઈ થેન્ક યુ, નિસારભાઈ થેન્ક યુ. જાવેદભાઈ મેડિકલ. સમીરભાઈ. થેન્ક યુ સાહેબ, ડૉક્ટર સાહેબ. ધોરણ 1, 2 અને 3ના વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર હશે ઇન્શાલ્લાહ ઇનામ માટે. હવે આગળ ઇનામથી નવાજીશું. ધોરણ 1ના ઇનામ આપવા માટે હું વિનંતી કરીશ. સૌ પ્રથમ જે ઇનામ આપવાના છે 5 જણને, એમાં હાજી અબ્દુલ અઝીઝભાઈ, ગુલામ રસૂલભાઈ અને હાજી ઇલિયાસભાઈ અબ્દુલભાઈ લોખંડવાળા સ્ટેજ પર આવે. હાજી અબ્દુલ અઝીઝભાઈ ગુલામ રસૂલ અને હાજી ઇલિયાસભાઈ અબ્દુલભાઈ લોખંડવાળા. ઇકબાલભાઈ આવી જાય, ઇકબાલભાઈ. નેક્સ્ટ ફર્સ્ટ છે મહેમાન મોહમ્મદ સઈદભાઈ 97.67. મહેમાન મોહમ્મદ જાવેદ યાસીનભાઈ, એના પછી તૈયાર રહે. સોરી, મોહમ્મદ ઝૈદ યાસીનભાઈ. પહેલાં મહેમાન મોહમ્મદ સઈદભાઈ. આ બી બબ્બરનો જ બેટા. બબન તું તો બહુ ગિફ્ટ લઈ ગયો યાર, ઘરમાં લઈ ગયો. વાંધો નહીં બેટા, મુબારક બધાને. મહેમાન મોહમ્મદ ઝૈદ યાસીનભાઈ 97.33. મહેમાન મોહમ્મદ અયાન અબ્દુલ વહાબ 95.16, 95.16. ધ્રોજ હસનાન મોહસિનભાઈ 93.57. ધ્રોજ હસનાન મોહસિનભાઈ 93.57. નેક્સ્ટ મહેમાન હુમેરા મોહમ્મદ ઝુબેર 93.33. થેન્ક યુ અબ્દુલ અઝીઝભાઈ, થેન્ક યુ ઇકબાલભાઈ. નેક્સ્ટ બીજા જે વિદ્યાર્થીઓના સન્માન માટે અબ્દુલ રજાકભાઈ દાંધાવાળા, અનીસભાઈ મહેમણ, ઉમ્મીદ મહેમણ આવી જાય, અનીસના કઝિન. આગળના વિદ્યાર્થીઓને સન્માન કરશે મહેમાન મોહમ્મદ ફિયાન મોહમ્મદ ફારૂક,
मेमन मोहम्मद फियान मोहम्मद फारूक 91.40. नेक्स्ट मेमन मोहम्मद जीसान सब्बीर भाई 90. मेमन मोहम्मद तोहिद ताहिर भाई 87.67. मेमन अरहान सोहिल भाई 86%. मेमन अहमद बिलाल भाई 83.40 83.40. मेमन अरकान मोहसिन भाई 82.83. આ પહેલા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. શુક્રિયા સરીન, શુક્રિયા અબ્દુલ રજાકભાઈ. મેમન અહેમદ બિલાલભાઈ બાકી છે, ઊભા રહેજો સાહેબ 2 મિનિટ. મેમન અરકાન મોહસિનભાઈ 82.83%. મેમન અહેમદ બિલાલભાઈ 83.40%. થેન્ક યુ દોસ્તો, ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન, અભિનંદન બંનેને, બધા વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 1ના. થેન્ક યુ સરીન, થેન્ક યુ રજાકભાઈ. નેક્સ્ટ ધોરણ 2ના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરીશું આપણે. ધોરણ 2ના લગભગ 14 વિદ્યાર્થીઓ છે. સૌ પ્રથમ એના સન્માન માટે અયુબભાઈ ડીસા તેમજ મેમન હાજી ઇમ્તિયાઝભાઈ ધાનેરાવાળા આરટીઓ વાળા ધોરણ 2ના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવા આવશે. ધોરણ 2ના 5 વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરશે અયુબભાઈ ડીસા અને મેમન હાજી ઇમ્તિયાઝભાઈ ધાનેરાવાળા. मेमन आमीना अब्दुल रहमान, मेमन आमीना अब्दुल रहमान 99.70%. मेमन अलीना मोहम्मद जुबेर 97.70%. मेमन राहिब अब्दुल रज्जाक भाई 95. मेमन अलीना मोहम्मद जुबेर बेटा જ્યાં ત્યાં જલ્દી આવો. ધોરણ 2ના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન ચાલી રહ્યું છે. मेमन अलीला मोहम्मद जुबेर. मेमन राहिब अब्दुल रज्जाक भाई 95.83%. मेमन अलीना 97.70% હતા. બહુ બહુ અભિનંદન બેટા. નેક્સ્ટ મેમન માહિર સત્તાર ભાઈ 91.66%. નેક્સ્ટ મેમન ઇનાયા મોહસિન ભાઈ 91.14%. મેમન માહિર સત્તાર ભાઈ 91.66%. મેમન ઇનાયા મોહસિન ભાઈ 91.14%. ખૂબ ખૂબ આભાર અયુબભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર ઇમ્તિયાઝભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ બીજા 5 વિદ્યાર્થીઓ માટે મેમન ઇકબાલભાઈ રસુલભાઈ માલણવાળા, સફીભાઈ માસ્ટર અને ઇનુસભાઈ માસ્ટર પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવે અને આગળના 5 વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરશે ધોરણ 2ના. મેમન સફીભાઈ માસ્ટર અને મેમન ઇનુસભાઈ માસ્ટર. मेमन मोहम्मद हुसैन मोहम्मद यासीन 91%. सफी भाई मास्टर इनू भाई मास्टर બંને લોકો વિદ્યાનું સન્માન કરશે. મેમન મોહમ્મદ હુસૈન મોહમ્મદ યામીન 91%. નેક્સ્ટ શિરોયા મોહમ્મદ તકી સલીમભાઈ 88.30%. 8 મેમન પીપરાણી અફસીન ઇમ્તિયાઝભાઈ 88%. પીપરાણી અફસીન ઇમ્તિયાઝભાઈ 88%. નેક્સ્ટ મેમન આયશા બાનુ ઇલિયાસભાઈ 87.40%. નેક્સ્ટ મેમન આયશા બાનુ તલાભાઈ 87.33%. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બાળકોને. મેમન આયશા બાનુ ઇલિયાસભાઈ. નેક્સ્ટ મેમન આયશા તલાભાઈ. मेमन आयशा तलाभाई 87.33%. थैंक यू सभी भाई, थैंक यू यूनुस भाई. नेक्स्ट मेमन सिराज भाई दोशीवासवाड़ा विद्यार्थीओं सन्मान करवा आवशे અને મેમન નિસારભાઈ પીપરાણી આ બંનેમાં અનુભવ સ્ટેજ પર આવશે અને આગળના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરશે. मेमन सिराजभाई दोशीवासवाड़ा, निसार भाई आई जाए प्लीज.
નિશારભાઈ આવી ગયા, દોશીબા નથી. ભાઈ જકી તું આવી જા, આપણે યંગ કબડ્ડીનો માણસ જકી આવી જાય. મહેમાન મોહમ્મદ રેહાન સબ્બીરભાઈ 84%. આયશા તલાભાઈ તો આવી ગયું ને, હજી આવ્યા આવશે. મહેમાન મોહમ્મદ રેહાન સબ્બીરભાઈ 84. મહેમાન મોહમ્મદ શોએબભાઈ 81.66%. મહેમાન આયશા આસિફભાઈ 81%. ધોરણ 2ના વિદ્યાર્થીનું સન્માન ચાલી રહ્યું છે. મહેમાન આયશા આસિફભાઈ 81%. મહેમાન ફાતિમા મોહમ્મદ શાહિદ 81%. મહેમાન ફાતિમા મોહમ્મદ શાહિદ 81%. થેન્ક યુ જકી, થેન્ક યુ નિશારભાઈ. ધોરણ 2ના વિદ્યાર્થીનું સન્માન અહીંયા પૂરું થઈ જાય. હવે આપણે ધોરણ 3 તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ધોરણ 3માં માશાલ્લાહ 11 વિદ્યાર્થીઓ છે. ધોરણ 3ના વિદ્યાર્થીઓ માટે સાહિલભાઈ કુરેશી અને અતિકભાઈ કુરેશી પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવે. સ્ટેજ પર હતો તો આગળ આવે, અને સ્ટેજ પર ના તો સ્ટેજ પર આવે. સાહિલભાઈ કુરેશી, અતિકભાઈ કુરેશી. ધોરણ 3ના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરશે 5 વિદ્યાર્થીઓનું. સૌ પ્રથમ મહેમાન અરીબા મોહમ્મદ જુનેદ 99%. કોંગ્રેચ્યુલેશન બધાને, અભિનંદન. મહેમાન અરીબા મોહમ્મદ જુનેદ. નેક્સ્ટ મહેમાન મોહમ્મદ રિયાન અબ્દુલ સત્તાર 98.02%. મહેમાન મોહમ્મદ રિહાન અબ્દુલ સત્તારભાઈ. નેક્સ્ટ મહેમાન મોહમ્મદ અબ્દુલ કલામ બિલાલભાઈ. નેક્સ્ટ મહેમાન એમના છે અબ્દુલ કલામના 96.67% છે. નેક્સ્ટ મહેમાન મોહમ્મદ ઝેદ ઇલિયાસભાઈ 91.40%. મહેમાન મોહમ્મદ ઝેદ ઇલિયાસભાઈ 91.40%. નેક્સ્ટ પીપરાણી મોહમ્મદ તલા ઇમરાનભાઈ 91%. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બાળકોને. થેન્ક યુ સાહિલભાઈ, થેન્ક યુ અતિકભાઈ. નેક્સ્ટ ધોરણ 3ના વિદ્યાર્થીઓને પીપરાણી મોહમ્મદ તલા ઇમરાનભાઈ. શુક્રિયા બહુ બહુ પ્રતિકભાઈ, સાહિલભાઈ. બાકીના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવા માટે જાકીરભાઈ પ્રમુખ જુનાડીસા જમાત, સફીભાઈ માસ્ટર ડીસા સ્ટેજ પરથી થોડી આગળ આવવાની તકલીફ લે પ્લીઝ. વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરે. મહેમાન તૈબા મોહમ્મદ બિલાલ. નથી આજે નદીમભાઈ આવી જાય, વાંધો નહીં છે. મહેમાન તૈબા મોહમ્મદ બિલાલ 90.60. મહેમાન ફાતિમા મોહમ્મદ ઝેદ 90.50. મહેમાન નસીમ બાનુ તલાભાઈ 88.75. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બધા બાળકોને. મહેમાન ઉમ્મે હાની તોફિકભાઈ 88.37. મહેમાન ઉમ્મે હાની તોફિકભાઈ 88.37. મહેમાન અહમદ મોહમ્મદ હનીફ 85.75. મહેમાન અહમદ મોહમ્મદ હનીફ 85.75. મહેમાન મોહમ્મદ રેહાન મોહમ્મદ ઇરફાન 85.67. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ધોરણ 3ના બાળકોને. શુક્રિયા નદીમભાઈ, શુક્રિયા ઝાકીરભાઈ, બહુ ખૂબ ખૂબ આભાર સન્માન કરવા બદલ વિદ્યાર્થીઓનો. અહીંયા બીજો સ્લોટ પૂરો થયો ઇનામ વિતરણનો. હવે આપણે જેને બહુ સમયથી જે ઇંતજાર કરી રહ્યા હતા એની સ્પીચનો, એના માટે હું હવે થોડા આગળ વધીએ. સ્પીચ લાસ્ટ યર જેમની સ્પીચ શનિવારે શરૂ કરીને રવિવારે પૂરી થઈ હતી. આપણી શનિવારે લગભગ 12:05 અમે ચાલુ કરી હતી અને રવિવારે જે ટાઈમ હતો એ પ્રમાણે પૂરી થઈ હતી. ઇન્શાલ્લાહ આ વખતે જેમની સ્પીચ આપણે 2 પાર્ટમાં માણીશું તેવા ખ્યાતનામ મોટિવેશનલ સ્પીકર કે જેથી ઘણા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોએ પ્રેરણા લઈ જીવનની ઉચ્ચ સિદ્ધિઓ હાંસિલ કરી છે. તો હું ઇરફાનભાઈ મોગલ સાહેબને વિનંતી કરું
કે હવે આ મોરચો આપ શ્રી સંભાળે અને બાળકોને મોટિવેટ કરે, એમના 2 પાર્ટ થશે, બરાબર ને? એમની સ્પીચ પૂરી થાય એટલે ધોરણ 7, 8, 9ના વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર રહે ઇનામ માટે. પણ હવે જે આ સ્પીચ આપણી મુખ્ય સ્પીચ છે, આમ જોવા જઈએ તો કે મોટિવેટ કરવા માટે સ્પેશિયલ આપણે ત્યાં પધાર્યા છે, તો બધી મા બહેનોને અને બધા વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કરું કે પ્લીઝ એકદમ સાયલેન્ટ થઈ જાય. બહુ ઉમદા સ્પીચથી એમનું બહુ સારું એવું આપણે કરતા થશે. જે દિન માટે જે મૌલાના જેદ સાહેબે સ્પીચ આપી એ રીતે દુનિયાઈ ઇલમ માટે બી ભાઈ ઇરફાનભાઈ મોગલ સાહેબ સ્પીચ આપશે. વેલકમ સર. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. शुरू करता हूँ अल्लाह के वास्ते जो निहायत ही रहीम है, करीम है और रब्बुल आलमीन है. तमाम तारीफ़ मेरे अल्लाह के लिए है और केवल वही और सिर्फ़ 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 वही इबादत के लायक है और सिर्फ़ वही है जो दे सकता है और ले सकता है. मेरे इंट्रोडक्शन में जैसे निसार भाई ने बात किया, ये लगातार दूसरा साल है जब मैं आपके बीच में हूँ, इसी स्टेज पे हूँ और यहीं पे बात कर रहा हूँ. लास्ट ईयर जैसे इस तरह का ही वक्त था और मैंने मजाक में कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 से ज़्यादा स्पीच देने के बाद कोई स्पीच जो है वो 2 दिन तक लगातार चली हो. आई स्टार्टेड एट सम 11:45 एंड क्लोज्ड एट 12:30 ऑफ द नेक्स्ट डे. मतलब कुछ 45 मिनट का स्पीच था जो 2 दिन तारीख के हिसाब से चला था. और क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो इस साल भी हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है. हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आपकी स्पीच हम इस बार 2 सेशन में रखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि तमाम जो लोग हैं वो पहली वाली जो स्पीच है वो कम से कम सुन सके जिनको जल्दी जाना है. तो मैं आपके सामने कुछ मिनटों के लिए हूँ. मुझे जनरली बताया गया है कि यहाँ के जो तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो हैं उनके साथ मुझे बात करके उनको मोटिवेट करना है. तो कहानी कुछ ऐसी है, शुरुआत कुछ ऐसे करूँगा कि बेहतरीन एक कहानी है, स्टोरी है. पिछले 2 साल से एक कंट्री का नाम आप बड़े अखबारों में सुनते आ रहे हैं, रशिया के साथ जिसका वॉर चल रहा है. मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन की. तो आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ जो वाकई में बड़ी मोटिवेटेड कहानी है, जो शुरू होती है 1996 में यूक्रेन से. यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है जहाँ पे मेजॉरिटी में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है. प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे ज्यूज़ जो है वो माइनॉरिटी में, जिसको हम यहूदी कहते हैं, वो बड़ी कम तादाद में है. तो 1996 यानी 1996 के आसपास में वहाँ पे क्रिश्चियंस और ज्यूस के बीच में दंगे हो जाते हैं. और जैसे मैंने बताया कि यहूदी वहाँ पे कम तादाद में है, तो यहूदी का ही एक फैमिली होता है जिसमें एक माँ और बेटा है जो निहायत ही गरीब ज़िंदगी जी रहे हैं. वो लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे ज्यूस के साथ में अमेरिका चले जाते हैं. उस वक्त अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया था कि जितने भी ज्यूज़ हैं, आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी अगर कहीं रहते हैं इज़राइल से भी ज़्यादा, तो वो अमेरिका में हैं. तो अमेरिका ने उनको वेलकम किया. ये माँ बेटा दोनों अमेरिका चले जाते हैं. बहुत ही गरीब है, पास में पैसे नहीं है. अमेरिका में जाकर वो वहाँ पे जो आश्रित सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं ना वॉर डिटेक्शन सेंटर, जहाँ पे युद्ध के जो जितने भी आश्रित लोग होते हैं वहाँ पे रखे जाते हैं, वहाँ पे वो रहने लगते हैं. वहाँ पे बच्चा जो है उसकी उम्र करीबन 10-12 साल है, उसकी फ्री में स्कूलिंग होता है. और स्कूलिंग के साथ साथ में खाना खाने के लिए यूएसए में एक सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट है जिसको फूड स्टैम्प डिपार्टमेंट कहा गया है. जैसे अपने वहाँ पे टपाल का टिकट मिलता है ना, स्टैम्प जिसको हम बोलते हैं, वैसे वहाँ पे फूड स्टैम्प डिपार्टमेंट है. तो जो लोगों के पास खाना नहीं है वो उसकी ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे वो फूड के टिकट लेंगे और फिर फ्री में उनको खाना मिलेगा. तो ये माँ और बेटा दोनों जो हैं उनके पास और कुछ है नहीं आसरा, तो वो 2 टाइम रोज़ फूड स्टैम्प डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, वहीं पे फ्री का खाना खाते हैं. एक बार ऐसा होता है कि जो टिकट बांटने वाली लेडी वहाँ पे बैठती है, वो ये दोनों को बार बार रोज़ ताना देती है, कहती है कि कहाँ तक अमेरिका की खैरात खाओगे, कहाँ तक अमेरिका की भीख खाओगे, अपना कुछ करते क्यों नहीं है.
और क्योंकि उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो ऐसे ही चलता रहता है। अब धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है, 12th के बाद वो जूनियर कॉलेज में जाता है, 10th के बाद। अब जूनियर कॉलेज के लिए उसके बाद फ्री नहीं होता एजुकेशन, तो उसको फीस देनी पड़ती है। अब ये फीस इकट्ठा करने के लिए ये लड़का जो है वो वहाँ पे वॉलमार्ट नाम से स्टोर है अमेरिका में, जैसे अपने यहाँ पे आपने डी मार्ट या बिग बाजार देखे होंगे, इस तरह के बड़े बड़े स्टोर है जिसको वॉलमार्ट कंपनी चला रही है। तो वो वॉलमार्ट में टॉयलेट साफ करने का काम करता है, वो हाउसकीपिंग का काम करता है, वो फ्लोर पे पोछा मारता है, बाथरूम साफ करता है, टॉयलेट साफ करता है, और ऐसा करके वो अपनी फीस के पैसे निकालता है। धीरे धीरे कॉलेज में आता है, कॉलेज में उसका एक अमेरिकन लड़के के साथ दोस्ती होती है और दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है, तो दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। दोनों का इंटरेस्ट ये होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ 96 के बाद, 3-4 साल के बाद, साल 2000 की। उस वक्त जो है वो मोबाइल फोन्स जो है वो बड़े अच्छे चलन में थे, नोकिया वगैरह चला करते थे। तो ये दोनों लोग सोचते हैं कि यार ये फ़ोन में सिर्फ मैसेज जाता है और फ़ोन होता है, हम क्यों ना दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का ईजाद करें जहाँ पे हम फोटो भी भेज सके, वीडियो भी भेज सके, फाइल, डॉक्यूमेंट, सब कुछ जो है वो हम मोबाइल के ज़रिए से भेज सके। दोनों बड़ी मेहनत करते हैं, तभी दोनों को नौकरी मिलती है yahoo.com के अंदर। और याहू में ये बेसिक सैलरी, जैसे इंडिया की बात करूँ तो 10-12 हज़ार की सैलरी, वैसे सैलरी के साथ ये दोनों yahoo.com में नौकरी करते हैं। तभी करीबन 2004 में फेसबुक लॉन्च होता है और फेसबुक में ये दोनों इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और दोनों इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। उनको ये बोल के फेल किया जाता है कि आपका जो लेवल है वो फेसबुक के जूनियर एंट्री लेवल के काबिल नहीं है। तो दोनों को जुकरबर्ग की कंपनी में से बाहर निकाला जाता है, वापस याहू में आके काम करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका एप्लीकेशन डेवलप होता है, वो दुनिया में एक एप्लीकेशन ऐसा डेवलप करते हैं जैसा वो सोचते हैं। और ये बात हो रही है साल 2009 की। 2009 में ये दोनों, जो अमेरिकन बंदा था उसका नाम था ब्रायन एक्शन, और जो ज्यूज बंदा जिसकी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, जो यहूदी लड़का था, उसका नाम था जैन कॉम। तो जैन कॉम और ब्रायन एक्शन दोनों मिलकर 2009 में अपनी पहली एप्लीकेशन इस दुनिया में लॉन्च करते हैं। ये ऐसा एप्लीकेशन है जो आप जितने भी मेरे सामने लोग बैठे हैं या जितने भी स्टेज पे बैठे हैं, सबके मोबाइल में ये एप्लीकेशन शामिल है। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप की। ये कहानी है व्हाट्सएप के फाउंडर की। 2009 में, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे सुनिएगा। 2009 के अंदर ये दोनों बच्चों की एप्लीकेशन दुनिया में आती है व्हाट्सएप के नाम से। बहुत कम वक्त में ये फैल जाती है। वही फेसबुक जिसने उनको मना किया था एंट्री लेवल की जॉब के लिए, 2014 में जुकरबर्ग जो है वो इनको एक बड़े पैसे का ऑफर देता है कि मुझे आपकी कंपनी खरीदनी है। और ये दोनों आपस में डिस्कस करने के बाद जो जैन कॉम है, जो ज्यूज बंदा, यहूदी बंदा है, वो एक शर्त रखता है। वो बोलता है कि हम आपको कंपनी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो पूछता है शर्त क्या है, जुकरबर्ग पूछता है। वो बोलता है कि शर्त यह है कि हमारा जो डील का फाइनल सिग्नेचर होगा वो मैं जिस जगह पे बताऊंगा वहां पे आपको आपकी टीम लेके आना पड़ेगा। जुकरबर्ग को लगता है शायद दुनिया की कोई बहुत बड़ी होटल में बुलाएगा, दुबई में या कहीं पहाड़ के ऊपर या पता नहीं कहाँ, कोई बड़ी अच्छी सी जगह पे बुलाएगा। इसको पूछता है कहाँ पे आना होगा। वो बोलता है आपको आना पड़ेगा अमेरिका के फूड स्टैम्प डिपार्टमेंट के वेटिंग रूम के अंदर। हिस्ट्री पढ़िएगा, गूगल करिएगा। 2014 में मार्क जुकरबर्ग अपनी 18 लोगों की एग्जीक्यूटिव की टीम लेकर अमेरिका के फूड स्टैम्प डिपार्टमेंट में गया। वहाँ पे बैठ के जैन कॉम ने उसके पास से वो चेक लिया। उसका वैल्यू कितना था, 21 बिलियन यूएस डॉलर। बिलियन बोल रहा हूँ मैं, मिलियन नहीं, बिलियन, 21 बिलियन यूएस डॉलर। ये जब डील हुआ तो अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था उसमें 8% का जंप हुआ था, जो उसकी 100 साल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जंप था। वो चेक लेकर जैन कॉम जो है वो उस विंडो में जो लड़की रोज उसको ताना मारती थी उसको जाके दिखाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे को रोज ताना मारती थी, मैंने 5 साल आप लोगों का फ्री में खाना खाया है और ये मेरा अमेरिका को रिटर्न गिफ्ट है। मेरे एक डील की वजह से तुम्हारा स्टॉक मार्केट 100 साल में सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे है, ये मेरा आपको रिटर्न है। तो सर ये कहानी थी जैन कॉम की, जो आप जितना भी इसको सोचोगे ये हम सब के लिए बहुत बड़े मोटिवेशन की बात है। वो बच्चा किसी भी कम्युनिटी का था, वो यहूदी था, लेकिन हमारे लिए सीखने के लिए उसका ऐसा स्ट्रगल, जब उसके पास खाने को पैसा नहीं था, जब उसने टॉयलेट साफ किया और अपनी फीस भरी
और फाइनली उसने अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डील क्रैक किया। सो ये स्टोरी हम सब के लिए बड़ी जो है वो प्रेरणा वाली स्टोरी है। अब मैं थोड़ी आगे आपको बात करूं, खास तौर पे स्टूडेंट्स को मैं बात करूं, तो एक सिंपल सवाल मेरे मन में आप सब लोगों के लिए आता है कि आपकी जो जिंदगी की किताब है उसका पहला और आखिरी जो पेज है ना, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। पहला पेज जो हम सब के लिए है वो है पैदाइश, हम इस दुनिया में आए, और आखिरी पेज जो है वो हमारा ईमान का हिस्सा है, वो है मौत। जो आया है उसको वापस उसी की तरफ जाना है। तो पहले पेज पे पैदाइश और आखिरी पेज पे मौत लिख जा चुकी है, लेकिन उसके सारे बीच के जो पेज है ना, वो आप लोगों के लिए अभी भी खाली है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इन बीच वाले पेज में क्या लिखना चाहते हैं। पेन आपके हाथ में है, आप चाहें तो आप लिख सकते हो पबजी का गेम, क्लैश ऑफ क्लैश गेम, पूरा दिन पान की दुकान पे बैठना, पूरा दिन लड़ाई झगड़े करना, गुस्सा करना, माँ बाप के साथ उलझना, पढ़ाई नहीं करना, कुछ भी इधर उधर भटकना, और उसके बाद पूरी फैमिली को परेशान करना, दोस्तों में अपना नाम खराब करना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि पेन आप ही के हाथ में है, तो आप चाहो तो आप उस पर कामयाबी लिख सकते हो, आप चाहो तो आप उस पर बहुत सारा जायज़ तरीके से कमाया हुआ पैसा लिख सकते हो, आप चाहो तो उसके ऊपर इस माशरे के लिए कुछ अच्छा काम करने की नीयत लिख सकते हो, आप चाहो तो दीन को सारी जो अचीवमेंट्स है वो हासिल करना लिख सकते हो। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आप ही के हाथ में हैं। आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि आपको जो ज़िंदगी दी है, आज के दौर में हिंदुस्तान में एवरेज ज़िंदगी जो है वो 67 साल की है। 15 साल बचपन में चले जाते हैं, आखिरी 10 साल बुढ़ापे में चले जाते हैं, बीच के 30-35 साल रहते हैं जहाँ पे आपको ये प्रूव करना होता है कि हम अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक है। तो ये जो 30 साल है उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिविटी लिखना चाहते हो। आपको मेरी जो बात है वो इजी याद रहे, इसके लिए आने वाले 10-15 मिनट में मैं आपको ABCD का जो A से लेके H है उस वर्ड के साथ में कुछ अलग अलग मैसेज मैं देना चाहूँगा। मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे ज़्यादातर जो मैसेज होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन बेशक जो पेरेंट्स हैं वो भी उसको अमल कर सकते हैं या अपने बच्चों को इसके बारे में पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी की किताब में अगर आपको अच्छाइयाँ लिखनी है, मैं दीन के हिसाब से नहीं, मैं दुनियावी हिसाब से बात करता हूँ। बेशक दीन के बारे में मौलाना साहब ने, जैद साहब ने वगैरह ने बहुत बेहतरीन बात की, और भी आगे बात होती रहेगी। तो दुनियावी रीत से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ आप अपनी ज़िंदगी की किताब में जो बेहतरीन चीज़ लिख सकते हो वो मैं A से शुरू करूँगा। जैसे मैंने बोला A से H तक मैं आपसे बात करूँगा। सो A फॉर एटीट्यूड। मेरी एक बात याद रखना, आपके पास दुनिया भर की डिग्री है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत सारा सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी नेगेटिव माइंडसेट की वजह से उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। इजी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, शायद लास्ट वाली स्पीच में भी मैंने एक एग्जाम्पल यही वाला दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, फिर भी आपको याद कराता हूँ। आप सब ने एक कहानी बचपन में सुनी होगी, अलादीन और उसके जिन की कहानी। आपने सुना होगा कि एक लड़का है अलादीन नाम से, उसको कहीं से एक चिराग मिल जाता है, वो चिराग को घिसो तो उसमें से एक जिन बाहर निकलता है और फिर वो 3 ख्वाहिशें पूरी करता है। तो इसी तरह 2024 के अंदर एक बच्चा है, उसको कहीं से इस तरह का चिराग मिल जाता है। अब जो चिराग मिलता है तो उसने भी कहानी सुनी होती है तो बड़ा खुश हो जाता है, उसको लगता है यार ज़िंदगी बन गई, अब तो मज़ा आ जाएगा, जो मांगूंगा मिल जाएगा। तो वो उस जिन से पहली ख्वाहिश मांगता है, वो कहता है कि एक काम करो, मेरे लिए 50 करोड़ रुपया लेके आ जाओ। जिन थोड़ा सोच के बोलता है सर बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो मेरा कैपेसिटी नहीं है, कुछ कम मांग लो, दे दूंगा शायद। वो बच्चा सोचता है यार मैंने तो सुना था कुछ भी देता है, चलो 2 विश और बाकी है। सेकंड में कुछ मर्सिडीज कार मांगता है, वो जिन उसको भी मना करता है। थर्ड में बोलता है यार एक काम कर, मेरे लिए 50 बेडरूम का बंगलो बना के दे दे। जिन बच्चे को थोड़ा नज़दीक बुला के खींच के थप्पड़ मारता है और बोलता है साला मेरे पास 50 बेडरूम का बंगलो होता तो मैं थोड़ी तो छोटे चिराग में रहता, कुछ और मांग ले। अब आज के दिन की तो 3 विश पूरी हो गई। अब वो बच्चा बोलता है यार हमने तो कहानियों में सुना था कि तुमसे कुछ भी मांगो तुम दे देते हो, हमको तो टीचर ने यही पढ़ाया था, शायद हमने कहानियां गलत सुनी, हमारे टीचर ने गलत पढ़ा दिया। जिन बोलता है नहीं बेटा, आपने जो सुना 100% सही बात है, पहले मैं कुछ भी मांगो मैं सब कुछ दे देता था, लेकिन पिछले 20 साल से
मैं जिस मालिक के पास में था ना, उसने कभी भी मुझसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगी। वो हमेशा मेरे को बोलता था कि जा दुकान से दौड़ के अंडे लेके आ जा, तो मैं भाग के अंडे लेके आ जाता था। कभी बोलता था बच्चों को स्कूल छोड़ के आ, तो मैं स्कूल छोड़ देता था। कभी बोलता था कि स्कूटर रिपेयर कर दे, तो मैं वो कर देता था। तो ये 20 साल में मैंने इतने छोटे छोटे काम किए हैं कि वो जो बड़ा देने वाला मेरा पावर था ना, माइंड सेट, वो भी खत्म हो गया है। आप बोलो आपको कुछ दही वही मंगवाना है, मैं दौड़ के लेके आ जाता हूं। कुछ छोटा काम मेरे को बता दो, मैं कर दूंगा। तो सर ये कहानी जो है ना, बहुत पुराने जमाने की कहानी है, लेकिन हम सबके लिए सिंपल सी सीख है। अगर आपने अपने माइंड सेट को छोटा रखा, आपने अपने माइंड सेट को अगर दुकान से अंडे लाने तक के, स्कूटर रिपेयरिंग तक रखा, तो आपका दिमाग जो है ना, वो आपको बड़ा देने से इनकार कर देगा। आपकी बड़ी सोच जो है ना, वो बहुत छोटी बन जाएगी। मेरी एक बात याद रखना, अल्लाह ने अगर हमारी बॉडी का कोई सबसे पावरफुल कोई चीज दी है ना, तो वो हमारा दिमाग है। एक गूगल में लिख के देखिएगा अंग्रेजी में कि हमारी टोटल बॉडी में आर्टरीज की लंबाई कितनी है। आर्टरीज मतलब जेने गुजराती में આપણે નસ કહીએ ને, નસો હોય, એની લંબાઈ કેટલી છે? गूगल आपको जवाब देगा 60,000 माइल, 60,000 माइल। ये मैं साइंसी फैक्ट बता रहा हूं। 60,000 माइल का मतलब क्या है, बड़े शॉर्ट में समझाता हूं। अगर पृथ्वी का एक चक्कर लगाना है ना, तो 24,000 माइल होता है। मतलब अल्लाह ने एक बंदे की बॉडी में 2.5 बार पृथ्वी का चक्कर लगा ले, इतनी सारी नसें दी हुई है। और उसमें से एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी हिस्सा सिर्फ यहां पर है, सिर्फ दिमाग के अंदर है। आपका जो दिमाग है ना, वो आपका इंजन है, बाकी बॉडी सिर्फ डिब्बे हैं। इंजन चलेगा तो ही डिब्बे इसके पीछे घसीटेंगे, अदरवाइज सब कुछ बेकार है। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए। मेरी बात याद रखिए, दिमाग के दिमाग नहीं होता। थोड़ा सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है, इजी एग्जाम्पल देता हूं। आप उसको जो समझाते हो ना, वो मान जाता है। आप बोलोगे मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूं, आपका दिमाग बोलेगा बिल्कुल सर, आप दुनिया के नहीं, पूरे पृथ्वी के, इससे बाहर के भी सबसे बेहतरीन इंसान हो। अगर नहीं है तो मैं आपको बना दूंगा। आप अपने दिमाग को बोलोगे यार मैं थका हुआ हूं, मैं हारा हुआ हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं पास नहीं होगा। दिमाग बोलेगा साला तू थका हुआ नहीं, तू महा थका हुआ आदमी है, और नहीं होगा तो मैं तेरी हालत खराब करके रख दूंगा। कहने का मतलब दिमाग को आप जो सिखाओगे वो आप वैसे आपको अनुकरण करेगा, वो अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेगा। ये आपका सबसे बेहतरीन लॉयल नौकर है। थोड़ा टॉपिक हार्ड हो रहा है, इसलिए मैं बी पे आता हूं। ए फॉर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, सोच को बड़ा रखिए, बड़ा सोचिए। नंबर 2 बी, बी फॉर बी अ गुड लिसनर। दुनिया में अपने आसपास के जो दोस्त हैं ना, उनको एनालाइज कीजिए कि आपके जो पक्के वाले दोस्त हैं, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, वो क्या, उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो सारे लोग अच्छे सुनने वाले लोग हैं। दुनिया में उनकी इज्जत है जो अच्छे सुनने वाले लोग होते हैं। बात बड़ी छोटी है, लेकिन सोचिएगा बहुत बड़े इसके मायने हैं। दुनिया का नंबर 1 कम्युनिकेशन ट्रेनर है टोनी रॉबिन्स। उसने अमेरिका के लास्ट 5 प्रेसिडेंट को कम्युनिकेशन सिखाया है। टोनी रॉबिन्स अपनी किताब में बड़ा इजी एक सेंटेंस लिखता है। वो लिखता है कि बोलने से आप उतना ही बोल पाते हो जितना आप ऑलरेडी जानते हो, जितना नॉलेज आपके पास है। लेकिन सुनने से आपको वो भी पता चलता है जो आपने पहले कभी नहीं सोचा, कभी जाना नहीं है। आपको एक नई चीज सुनने मिलती है। तो याद रखिएगा, बी फॉर बी अ गुड लिसनर। अच्छे सुनने वाले बनिए। अगर आप अच्छे श्रोता हैं, अच्छे सुनने वाले हैं, तो लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। आपको चाहने वाले लोग, आपके दोस्त जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 3 ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बी गुड लिसनर, सी फॉर कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। दुनिया का अगर कोई सबसे खतरनाक जगह है, स्टूडेंट्स ये खास तौर पे आपके लिए बोल रहा हूं, दुनिया की अगर कोई सबसे खतरनाक जगह है ना, तो उसको कहते हैं कंफर्ट जोन, आराम वाली जगह। आपने कभी साइकिल चलाया होगा, आप याद कीजिए जब आप साइकिल चलाते हो तो कब जाके आपको पैडल मारना नहीं पड़ता, आपको मजा आता है, मेहनत नहीं करना पड़ता, आप पैडल रोक देते हो। ये कब करते हो? जब ढलान होती है। जो लोग साइकिल चलाते हैं उनको पता होगा, जब ढलान होती है तो आपको पैडल नहीं मारना पड़ता, आप बड़े कंफर्ट में, मजा आता है कि साइकिल चलाने में मजा आ रहा है। लेकिन आप ये बात भूल रहे हो कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो। आप ऊपर नहीं जा रहे, आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो। जिस दिन आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे, उस दिन आप दुनिया में सबसे ऊपर हो जाओगे। एक किसी कोल्ड ड्रिंक का बड़ा अच्छा ऐड है जिसका मैसेज है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। जिस दिन आपने डर निकाल दिया, अपने आराम वाले कोने से बाहर निकल गए,
कुछ चैलेंजिंग काम कर लिया, उस दिन आप बाकी लोगों से बेहतर हो जाओगे। मेरे सामने यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं। बेटा जो बच्चे दिख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे साथ जरा अपना हाथ ऐसे ऊपर करो। सारे बच्चे हाथ ऊपर करो, वेरी गुड। अभी और ऊपर करो, और ज्यादा खींचिए, वेरी गुड, सबसे ऊपर करो, बस हो गया, चलिए रख दीजिए वापस। मैंने आपसे सिंपल बात बोली कि अपना हाथ ऊपर करो, आपने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा और ऊपर, सबसे ऊपर करो। आप सब लोगों ने क्या किया पता है? आप सब लोगों ने बैठे बैठे ही अपने आप को और खींचा। आप में से एक भी बंदा अगर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया होता ना, तो बाकी तमाम लोगों में सबसे ऊंचा वो हो गया होता। लेकिन हम अपनी कुर्सी से नहीं खड़े हुए क्योंकि हम कंफर्ट जोन में हैं। जिस दिन आपने इस आराम वाली जगह को छोड़ा, उस दिन आप सबसे ज्यादा ऊंचे पहुंच जाओगे। तो याद रखिएगा, C फॉर कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। नाउ D, A B C के बाद आएगा D फॉर डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। दुनिया की अगर कोई सबसे बड़ी चीज है कामयाबी हासिल करने का, तो उसका एक वर्ड अगर कोई मुझे पूछेगा कि कामयाब होने के लिए कोई एक वर्ड में फॉर्मूला बता दो, तो मैं बोलूंगा उस एक वर्ड का नाम है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप सब पाने के बाद भी कुछ नहीं पाओगे, सब कुछ खो दोगे। लेकिन डिसिप्लिन है तो आप एवरेज होने के बाद भी आप सबसे बेहतरीन हो जाओगे। और बाकी मैंने क्या बोला? टाइम मैनेजमेंट। आप सोचिए कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में हर रोज 86,400 रुपीज जमा हो जाते हैं। सुबह 6 बजते हैं 86,400 रुपए जमा हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन 6 बजे वो पैसा जीरो हो जाएगा अगर आपने उसको खर्चा नहीं किया तो आप सोचिए आप क्या करोगे? आप उसको वैसे ही बैंक में रखोगे या पूरा का पूरा खर्चा कर दोगे? डेफिनेटली हम पूरे का पूरा खर्चा करेंगे, क्योंकि पता है कि नहीं किया तो अपने आप जीरो हो जाएगा। इसी तरह हर रोज सूरज उगने के साथ साथ आपकी जिंदगी में रोज 86,400 सेकंड जमा होती है। आप 24 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 86,400 सेकंड होता है। हर रोज 86,400 सेकंड जमा होता है, दूसरे दिन वो खत्म हो जाता है। आप हर रोज एक दिन बूढ़े हो रहे हो। अगर आपने उसको यूटिलाइज पूरी तरह से नहीं किया, मेरी बात याद रखिएगा, दुनिया के बड़े से बड़े आदमी, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, चाहे किसी कंपनी का CEO है, चाहे कोई स्पोर्ट्स का बड़ा नाम है, चाहे मैं हूं, आप है, हम सबको अल्लाह ने 24 घंटा दिया है। किसी को 24 घंटे के ऊपर 1 मिनट भी नहीं दिया, लेकिन जिसने उसको बेहतरीन यूटिलाइज किया वो दुनिया में सबसे आगे है। तो ये क्या था? पॉइंट नंबर 4D, A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बी गुड लिसनर, C फॉर कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, D फॉर डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। अभी क्या आएगा? F आएगा, E आएगा, ABCD E फॉर एक्सेलेंट नॉलेज। एक्सेलेंट नॉलेज, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखिए, इल्म जो है ना, नॉलेज मतलब जिसको उर्दू में इल्म कहते हैं, इल्म जो है ना वो एक समंदर की तरह है। अगर आपको प्यास लगी है तो वो पूरा समंदर भी आपके लिए इतना बड़ा है कि आप उसमें से पूरी जिंदगी पीते रहोगे ना, उस समंदर में से एक बूंद कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको प्यास नहीं है तो आप जिंदगी भर समंदर के किनारे पे पीट करके बैठे रहो, वो इल्म आपके कोई काम का नहीं। अगर आपके पास प्यास नहीं है तो इल्म पाने के लिए प्यास जगानी पड़ेगी। अब प्यास किसको कहते हैं? ईरान के नॉर्थ में एक पहाड़ी एरिया है, खुरासन, आपने नाम सुना होगा। खुरासन के पहाड़ी एरिया में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में सरपंच के बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद आते हैं, घोड़े पे उस्ताद आते हैं किसी दूसरे गांव से, और वो सुबह आते हैं, सरपंच के बेटे को पढ़ा के चले जाते हैं। उसी गांव में एक गरीब बच्चा रहता है, उसको बड़ा शौक होता है इल्म हासिल करने का। वो उस्ताद के पास जाता है, बोले उस्ताद मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा 10 मिनट का टाइम भी आप दे दोगे मेरे लिए बहुत है। उस्ताद बोलते हैं बेटा मुझे पढ़ाने में एतराज़ नहीं, लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ ना वहाँ से मुझे 6 घंटा आने में होता है, 6 घंटा जाने में होता है, और बीच में सिर्फ 1 घंटा बचता है। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, अब जब रोज़ आप वापस जाओगे ना तो आप घोड़े पे बैठना, मैं आपके साथ पैदल चलूंगा 6 घंटा, और मैं सिर्फ सवाल पूछता रहूंगा, आप मुझे जवाब देते रहना। कहते हैं कि कुछ 5 से 7 साल तक वो बच्चा रोज 6 घंटे तक पैदल चलता रहा, उस्ताद से सवाल करता रहा और वापस अकेला आता था। ये थी इल्म की प्यास। जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं उस गांव का नाम था गजाला, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं जिस बच्चे का, उनका नाम था इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। ये कहानी ओरिजिनल कहानी थी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की, जिनको बोलते हैं ना कि इस्लाम में हर 1000 साल के अंदर एक मुजाहिद पैदा होता है, जो उनको कहा जाता है। तो इल्म की प्यास अगर आपके पास है
तो बेशक इल्म दुनिया में बहुत सारा बिखरा पड़ा है। तो ई फॉर एक्सेलेंट नॉलेज, इसके बाद आएगा एफ, ABCDEF। एफ इज फोकस ऑन वैल्यू। देखिए कभी भी है ना शॉर्टकट में मत जाइए। किसी मूवी का एक डायलॉग है, अमिताभ की एक मूवी थी सरकार, उसका एक डायलॉग है, नजदीक का फायदा देखने के पहले दूर के नुकसान को सोचिए। हमेशा हर चीज में लॉन्ग विजन के साथ काम करिए, तुरंत डिसीजन मत लीजिए। तो वैल्यू जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको शायद मैं समझाऊंगा तो बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इजी एग्जाम्पल, एक 2 लाइन का कहानी याद आता है, वो समझा देता हूं कि किसी गांव में 2 किराने की दुकानें होती है। दोनों दुकानें बहुत जबरदस्त चल रही होती है, अच्छा पैसा कमा रही होती है, और दोनों दुकान को चला रहे होते हैं उस फैमिली के बुजुर्ग आदमी। अब उस 2 दुकान में से एक दुकान पे एक बच्चा होता है जो MBA करके आता है। वो अपने दादा को बोलता है, दादाजी आप आराम करो, कल से मैं दुकान चलाऊंगा। दादाजी मान जाते हैं, ठीक है बेटा आप बैठ जाना। वो दुकान चलाना शुरू करता है, 2-3 महीने में उसकी दुकान बैठ जाती है, बाजू की दुकान वैसे के वैसे चल रही है। वो अपने दादा के पास वापस आता है, बोले दादाजी बिजनेस कम हो गया, आप बताओ क्या ऐसा मैंने गलती की। दादा बोलते कल से मैं 2-4 दिन बैठता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ। फिर से दादाजी आ जाते हैं, बैठते हैं 2-4 दिन, फिर बताते हैं, बोले बेटा सिंपल गलती तूने की है। वो समझाते हैं कि देखो जब कोई कस्टमर आता है और 1 किलो शक्कर मांगता है ना तेरे से, तो पड़ोस वाली दुकान वाला क्या करता है कि सबसे पहले वो जो पाउच आता है ना जिसमें शक्कर तोलते हैं, बोले सबसे पहले वो 500 ग्राम शक्कर डालता है, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी डालता जाता है, 100 ग्राम 200 ग्राम, जब 1 किलो हो जाती है तो पैक करके दे देता है। कस्टमर को क्या लगता है कि ये अंदर डाल रहा है मतलब बरकत ही दे रहा है। और बोले तुम क्या करते हो, तुमको जब 1 किलो शक्कर कोई मांगता है तो पहले तुम 1.5 किलो भर लेते हो पाउच में और फिर थोड़ी थोड़ी निकालते रहते हो। देते तुम भी 1 किलो हो, देते वो भी 1 किलो है, लेकिन उसकी शक्कर में उसको लगता है कि बरकत से दे रहा है, तेरी शक्कर में लगता है कि तू निकाल निकाल के दे रहा है, तू कम दे रहा है। तो इसीलिए तेरे वहां पे कस्टमर का फ्लो कम हो गया है। इसको बोलते हैं वैल्यू पे फोकस करना, प्राइस पे नहीं। सो ABCDEF और G और उसके बाद H पे अपने खत्म करेंगे। G फॉर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि हमको जो कुछ मिला है उसका शुक्रिया अदा करना। अल्लाह ने हमें जो जो चीजें दी है उसके ग्रेटिट्यूड पे दुनिया की सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी है। मैं आपको ग्रेटिट्यूड का एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम हो गया अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो मेमन थे। अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। उनका नाम कितना बड़ा है उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो जैसे इंडिया में मदर टेरेसा का नाम है वैसे उनका बड़ा नाम है। कुछ 4-5 साल पहले इनका इंतकाल हो गया तो वहां के प्रेसिडेंट को जो मिलता है वैसे 18 तोपों की सलामी दी गई उनको। ईदी साहब जो था वो खिदमत में बहुत बड़ा नाम था, बहुत खिदमत का काम करते थे। एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि आप तो बचपन में बड़े गरीब थे तो आपको ये खिदमत का जज्बा कहां से आया। तो उन्होंने एक वर्ड में एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था और मेरी माँ ने एक बार मुझे 2 रोटी और दाल खाने को दी, मैंने खाना खाने के बाद मैंने आसमान में हाथ उठा के अल्लाह का शुक्रिया किया। मेरी माँ ने पूछा कि तुमने क्या किया, तो बोलता मैंने कि मुझे ये खाना मिला इसलिए मैंने अल्लाह का शुक्रिया कहा, मैंने शुक्रल्हम्दुलिल्लाह बोला। तो बोलता है मेरी माँ ने बोला कि बेटा शुक्रिया अदा करने के 3 तरीके होते हैं, 3 डिग्री होती है। पहला तरीका जो तुमने किया, तुमने मन में शुक्रिया किया। दूसरा तरीका है तुम इसी बात को जोर से बोलते ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती, इंस्पिरेशन मिलता। और तीसरा और सबसे बेहतरीन तरीका था अल्लाह का शुक्रिया करने का कि मैंने तुमको 2 रोटी खाने को दी, तुमने 1 रोटी खुद खाई होती और 1 रोटी तुमने जरूरतमंदों को दी होती, बांटी होती। तो इससे बेहतर शुक्रिया अदा करने का और कोई तरीका नहीं था। तो अल्लाह ने हमको जो कुछ दिया है हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हमेशा शुक्रिया कहते रहिए। और लास्ट पॉइंट है मेरा H फॉर हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आप जिंदगी में क्या बनोगे ना, उसका आधार 3 चीजों के ऊपर रहता है। नंबर 1 आपकी आदतें कौन सी आपने वो किया है, अख्तियार किया है। नंबर 2 दूसरी चीज आप किन दोस्तों के साथ में घूम रहे हो, आपके दोस्तों का लेवल क्या है। और नंबर 3 आप किस तरह की किताबों को पढ़ रहे हो, आपका बुक पढ़ने का क्वालिटी क्या है। इन 3 चीजों पे आप 10 साल बाद अपना कैरेक्टर बिल्ड करोगे। तो हमेशा अपनी आदतों को पॉजिटिव रखिए। APJ कलाम की एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, उनमें उन्होंने बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है। वो कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट विल चेंज योर डेस्टिनी। आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतें बदल दो और आपकी आदतें आपकी किस्मत को बदल के रख देगी। तो हमेशा
अच्छी आदतें रखिए। जैसे मैंने बताया, शायद एक बार फिर से मैं आपके सामने आऊँगा अगर टाइम बचा और उन्होंने कोई कब जो शेड्यूल है उसमें माइनस नहीं किया तो और हम इस तरह की बातें करते रहेंगे। अपनी बात खत्म होने के पहले कुछ 4-6 महीने पहले मैंने एक कोटेशन लिखा था, बड़ा गहरा कोटेशन है, गौर से सुनिएगा और उसके साथ में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने 2 लाइन में लिखा था, मैंने लिखा था कि शेर जब तक पढ़ाई नहीं करेगा, शेर जब तक अनपढ़ रहेगा, तब तक दुनिया की हर किताब में शिकारी की तारीफ लिखी जाएगी। ये बात याद रखिएगा, जब तक शेर अनपढ़ रहा दुनिया की हर किताब में सिर्फ और सिर्फ शिकारी की तारीफ लिखी जाएगी। सोचिएगा, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया मुगल सर। अभी नेक्स्ट पार्ट में भी आपको आना है, ABCDEFGH तो सुना आपने ने, आगे भी बढ़ना है थोड़ा। હવે આપણે જે લકી ડ્રો તો એમાં 3 નંબરની અહીંયા કૂપન ઉપાડીશું, થોડું એક ચેન્જ લાવી ગઈ આપણે। લકી ડ્રોમાં 3 નંબરની કૂપન ઉપાડીશું, એના પહેલાં ધોરણ 7, 8 અને 9ના વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર રહે ઇનામ લેવા માટે। ધોરણ 3ની કૂપન ઇનામ 3ની કૂપન ઉપાડીએ છે, એટલે ઇનામ 3ની કૂપન પર જે નામ આવે એને સ્ટેજ પર હાજર હશે તો મળશે। 3 વખત નામ એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવશે, એ હાજર નહીં હોય તો નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લાવવામાં આવશે। એટલે જે નામ બોલે હાજર હોય તો જ લેવા આવે, ઘરે બેઠા જ લેવા ના આવે, મહેરબાની કરીને ઉપાડી લે ને। આપણે યાર કેવું મોટું સોના ચાંદી છે। હા, કોને આપું? આબિદભાઈ નહીં હશે, શું વાત છે, સરસ। રહેબરે કોમના પુત્ર આબિદભાઈ કલોલવાળા સાહેબ, બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ। ના ના 3 નંબર હાલ, 2 નંબર પછી થોડું મજબૂત। હા, મેમણ બાસિદ ફારૂકભાઈ। બોલો બોલો બોલો। મેમણ બાસિદ ફારૂકભાઈ હાજર છે? શું નહીં આવે તો બેટા રહેવા દો, ના એની બૂન ના ચાલે બેટા, કેન્સલ। નેક્સ્ટ ફરી બેટા, ઘણા ઘરે બેઠી નાખી દીધું એટલે આવું જ થાય। સલમાન એન્જિનિયર। સલમાન એન્જિનિયર એ પણ ઘરે જ બેઠે લાગે છે। સલમાન એન્જિનિયર હાજર છે? કોઈ ડાઉટ હોય તો આધાર કાર્ડ મંગાવવું પડશે પછી, એટલે એવું બી ના કે સલમાન એન્જિનિયર હું છું એમ કહીને આવી જાય। નથી લાગતો ભાઈ, સલમાન એન્જિનિયર બી ઘરે સૂઈ ગયો લાગે છે। ખદીજા ઇમ્તિયાજભાઈ। ખદીજા ઇમ્તિયાજભાઈ, ચલો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ખદીજા ઇમ્તિયાજભાઈ યાદ છે, સરસ। ભાઈ ગિફ્ટ લો। ખદીજા ઇમ્તિયાજભાઈ, મોબાઈલ નંબર બરોબર છે ને બેટા? 98-254। હા, તારો નંબર બોલ। ગુડ, સરસ। એ નંબર 53। ઓકે ઓકે ઓકે, શુક્રિયા શુક્રિયા આબિદભાઈ। હવે ઇનામનો ફેઝ 3 અહીંયા આપણે લઈશું। ઇનામ છે ધોરણ 7, 8, 9ના વિદ્યાર્થીઓનો। હા સોરી, વચમાં એક વસ્તુ રહી ગઈ છે। આજનો જે આ પ્રોગ્રામ છે, બહુ સરસ સમાચાર આપ્યા મને એક કાગળ દ્વારા, બહુ આનંદની વાત છે। આજનો જે પ્રોગ્રામ છે એમાં તમામ બાળકોને ચાંદીના સિક્કા જે આપી રહ્યા છે, એના સખી દાદા છે મેમણ જકીભાઈ, મહરૂમ યાસ્મીનબેન ઇલિયાસબેન ઈસલે સવાબ માટે એમને બધાના સિક્કા આપ્યા છે। બહુ બહુ શુક્રિયા જકીભાઈ। આ એમનું જે વડપ્પન છે, આજે એમને જે સખાવત કરી છે, એમના માટે પ્રમુખ સાહેબ તરફથી 20 ગ્રામના ચાંદીના સિક્કાથી એમનું બહુમાન કરવામાં આવશે, સન્માન કરવામાં આવશે। પ્લીઝ જકીભાઈ, પ્લીઝ કમ હિયર। એમના મમ્મી યાસ્મીનબેન ઇલિયાસબેન ઈસલા સવાબ માટે બધાને ચાંદીના સિક્કા આપ્યા છે। ગુડ, વેરી ગુડ, અલ્લાહ કબૂલ કરે।
એક આપણે એક મહેમાન આવેલા છે હમીદભાઈ રાજપુરવાળા, એમનું સન્માન બાકી છે. હમીદભાઈ રાજપુરવાળા. રશીદભાઈ સતલાસણા બી હોય તો આવી જાય. અને હમીદભાઈ રાજપુરવાળા. પ્રમુખ સાહેબ સન્માન કરો એમનું. ધોરણ 7, 8, 9ના વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર રહે આ સન્માન પછી. ધોરણ 7ના સન્માન માટે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હું મહેમાન હાજી સાદિકભાઈ અબ્દુલ રહેમાનભાઈ સિમલાવાળા અને માસ્ટર હાજી અલ્તાફભાઈ સબીરભાઈને સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશ. ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન વિદ્યાર્થીઓને ગિફ્ટ આપી સન્માન કરશે હાજી અલ્તાફભાઈ ને ભાઈ સાદિકભાઈ સિમલાવાળા. સૌ પ્રથમ છે મહેમાન હાની ઇદ્રીસભાઈ 95.07%. મહેમાન હાની ઇદ્રીસભાઈ 95.07%. એના પછી નેક્સ્ટ છે મહેમાન મોહમ્મદ ઝેદ ઇરફાન હુસૈન 91.72%. મહેમાન મોહમ્મદ ઝેદ ઇરફાન હુસૈન 91.72%. સિરોયા મોહમ્મદ ઉમેર સરફરાજભાઈ 87.83%. નેક્સ્ટ મહેમાન ફરહીન બાનુ રિઝવાનભાઈ 84.72%. ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. મહેમાન ફરહીન બાનુ રિઝવાનભાઈ 84.72%. નેક્સ્ટ મહેમાન મોહમ્મદ ઇદ્રીસભાઈ 80.55%. મહેમાન મોહમ્મદ ઇદ્રીસભાઈ 80.55%. શુક્રિયા અલ્તાફભાઈ, શુક્રિયા સાદિકભાઈ. નેક્સ્ટ ધોરણ 8ના સન્માન માટે ડૉક્ટર રફીકભાઈ માસ્ટર અને સાકિર પેરેડાઇઝ સ્ટેજ પર આવશે. ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓના સન્માન માટે જે ટોટલ 10 વિદ્યાર્થીઓ છે એમાં 5 વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન ડૉક્ટર રફીકભાઈ માસ્ટર અને સાકિરભાઈ પેરેડાઇઝ. સાકિરભાઈ પેરેડાઇઝ સાહેબ તમે ત્યાં જ બેસો એવું તો ત્યાં આગળ આવી જાઓ. મહેમાન અદીબ લુકમાનભાઈ 95%. એને લગભગ કુરાન હાફિઝ પણ છે, બહુ શોર્ટ ટાઈમે કુરાન હાફિઝ કર્યું છે. મહેમાન અદીબ લુકમાનભાઈ, કોંગ્રેચ્યુલેશન બેટા. નેક્સ્ટ સિરોયા સોહેલ હિદાયતભાઈ 92.11%. ધ્રોઝ મોહમ્મદ અફવાન જાવીદભાઈ 87.33%. ધ્રોઝ મોહમ્મદ અફવાન જાવીદભાઈ 87.33%. નેક્સ્ટ મહેમાન અફીફા અબ્દુલ અજીઝભાઈ, મહેમાન અફીફા અબ્દુલ અજીઝભાઈ 85.33%. નેક્સ્ટ મહેમાન આરેફા બાનુ જુબેરભાઈ 85.82%. મહેમાન આરેફા બાનુ જુબેરભાઈ. મહેમાન આરેફા બાનુ જુબેરભાઈ 85.22%. 85.22. શુક્રિયા ડૉક્ટર સાહેબ, શુક્રિયા સાકિર. નેક્સ્ટ 5 વિદ્યાર્થીને ઇનામ આપવા માટે મહેમાન મહેબૂબભાઈ પીપરાણી અને જમીલભાઈ પત્રકાર સ્ટેજ આગળ આવશે. મહેમાન મહેબૂબભાઈ પીપરાણી, મહેમાન જમીલભાઈ પત્રકાર. બાકીના 5 વિદ્યાર્થીઓને
મહેમાન ખદીજા હારૂનભાઈ 85.11%. મહેમાન ખદીજા હારૂભાઈ 85.11%. નેક્સ્ટ મહેમાન ખદીજા સમીરભાઈ 84.57%. મહેમાન ખદીજા સમીરભાઈ 84.57%. નેક્સ્ટ મહેમાન લીઝા અલ્તાફભાઈ 83.43%. મહેમાન લીઝા અલ્તાફભાઈ 83.43%. પછી જે મહેમાન બુશરાબાનુ હબીબુલ્લાભાઈ 82.43%. મહેમાન બુશરાબાનુ હબીબુલ્લાભાઈ 82.43%. નેક્સ્ટ પીપરાણી નાઝિયા ઇમરાનભાઈ 77.12%. શુક્રિયા મહેબૂબભાઈ જમીલભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીનું સન્માન થયું છે. નેક્સ્ટ ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીનું સન્માન કરીશું આપણે. ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીના સન્માન માટે મંસૂરી યુનુસભાઈ અને બશીરભાઈ મહેસાણા સ્ટેજ પર આવશે અને ઇનામ આપશે. મંસૂરી યુનુસભાઈ અને બશીરભાઈ મહેસાણા. અમે યુનુસભાઈ બેઠાડા થાકી ગયા હતા, થોડા ઊભા કર્યા એમને. બશીરભાઈ બી થાકી ગયા હતા, બંનેને થોડા ઊભા કર્યા, થોડી એનર્જી લાવી દીધી. મહેમાન રિયાર મોહમ્મદ મુનાફભાઈ 87.43%. પપ્પા લેવાઈ ગયા, બેટો નહીં આવ્યો છું. પપ્પાને મુબારક. બીજું શું? સિરોયા મોહમ્મદ સાદ સરફરાજભાઈ 80.57%. સિરોયા મોહમ્મદ સાદ સરફરાજભાઈ 80.57%. મહેમાન રેહાન અબ્દુલ હમીદ 79.57%. મહેમાન રેહાન અબ્દુલ હમીદ 79.57%. મહેમાન મોહમ્મદ રાહિલ મોહમ્મદ યાકૂબ 76.43%. મહેમાન આદિલભાઈ ઇમરાનભાઈ 74%. મહેમાન આદિલભાઈ ઇમરાનભાઈ 74%. નેક્સ્ટ મહેમાન ઐમન ઇકબાલભાઈ 73.14%. મહેમાન ઐમન ઇકબાલભાઈ 73.14%. નેક્સ્ટ મહેમાન ખદીજા બાનુ મોહમ્મદ અયુબ 70%. અહીં ધોરણ 7, 8, 9નો સન્માન પૂરું થાય છે. શુક્રિયા યુનુસભાઈ એન્ડ શુક્રિયા બશીરભાઈ. હવે પ્રોગ્રામને આપણે આગળ લઈ જઈએ છીએ. ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા યુનુસભાઈ. હવે આ એક મહાનુભાવની સ્પીચ લઈશું આગળ. અહીંયા એક વિનંતી છે કે જે પાછળ સ્ટેજની પાછળ જે બહાર ઊભેલા મંડપમાં ખુરશી ખાલી પ્લીઝ આવીને બેસી જાય તો મજા આવશે વધારે. ખુરશી પર બેસવાની તકલીફ લો, ખુરશીઓ આપણો ઇંતજાર કરે છે. મંડપનું બેસવા કીધું તો બહાર જવા નીકળ્યા બધા, કોઈ વાંધો નહીં. ચલો, પરિસ્થિતિ તમને સાચવી તો તે તમારું નસીબ છે, પણ પરિસ્થિતિને તમે સંભાળી લો તો એ તમારી સમજણ છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આમ સમજણપૂર્વક થરાદી મહેમાનો કાઉન્સિલના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સેક્રેટરી તરીકે નિસ્વાર્થ સેવા આપનાર હાજી બશીરભાઈ વકીલ સાહેબને વિનંતી કરું કે સરકતા સમયને માન આપી મજબાને આપણી વાતોથી નવાજે. બશીરભાઈ વકીલ. હા સાહેબ, જરૂર તકલીફ આપશે. તકલીફ છે નહીં, ફરજમાં આવે છે. अस्सलामुअलैकुम. આજના પ્રોગ્રામના અધ્યક્ષ હનીફભાઈ, ઇરફાનભાઈ મોગલ સાહેબ, ઇરફાનભાઈ માસ્ટર, પૂર્વ પ્રમુખ આબિદભાઈ, સ્ટેજ પર બીજા મારા મિત્રો અને પાલનપુર સ્થાનિક મહેમાન જમાતના પ્રમુખ